Let us now study our next topic, wheatstone's bridge. इसका नाम wheatstone bridge क्यों है? Because this principle was given by wheatstone. साइंटिस्ट का नाम क्या है? wheatstone. इसीलिए हम लोग ने इसको wheatstones बोला और ये ब्रिज जैसा दिख रहा है, इसीलिए दिस इज wheatstone's bridge. जैसे दो ये हमारे पास रास्ते हैं, मान लो सपोज वी हैव टू रोड्स और ये रोड को कनेक्ट करने वाला ये लाइन है कि नहीं, तो ये अगर ये रोड नंबर 1 है, ये रोड नंबर 2 है, तो बीच में ये ब्रिज का काम कर रहा है. हेंस दिस सर्किट लुक्स लाइक अ ब्रिज. हेंस व्हीटस्टोन नेम्ड इट व्हीटस्टोन्स ब्रिज. व्हीटस्टोन ने उसको क्या नाम दिया? व्हीटस्टोन्स ब्रिज. व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल? Wheatstone's bridge principle states that if R1 upon R2 is equal to R3 upon R4, then IG is equal to 0. इसका मतलब क्या है? If R1 upon R2 रेजिस्टेंसेस का रेशियो R1 upon R2 is equal to R3 upon R4, R1 upon R2 is equal to R3 upon R4, then current through bridge resistor is 0. Then current through galvanometer is 0. Then IG is 0. इसका मतलब क्या है? अगर this upon this is equal to this upon this, then current through galvanometer G is 0. ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है. This principle is used to find unknown resistance and other applications. Unknown resistance find करना है या और भी applications करना है तो वहां पे ये principle use होता है, ये equation use होता है. If this upon this is equal to this upon this, then current through galvanometer is 0. ये हम लोग का principle. अब अगर उल्टा भी हम लोग बोल सकते हैं, अगर करंट थ्रू ब्रिज रेजिस्टर 0 है, अगर करंट थ्रू दिस ब्रिज रेजिस्टर कितना है? 0. करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना है? 0. देन दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस. इट इज वाइस वर्सा. इफ दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, देन करंट थ्रू ब्रिज रेजिस्टर इज 0. इफ R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, देन IG इज इक्वल टू 0. IG स्टैंड्स फॉर करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर. Alternatively, if IG is equal to 0, then R1 upon R2 is equal to R3 upon R4. Both are true. Now, how do we prove this principle? ये prove कैसे करेंगे हम लोग? तो उसके लिए हम लोग Kirchhoff's law लगाएंगे. We will use Kirchhoff's law in first loop and then in second loop. First loop इसको मैंने बोला loop 1, इसको मैंने बोला loop 2. पहले Kirchhoff's law हम लोग कहां लगाएंगे? loop 1. फिर Kirchhoff's law हम लोग कहां लगाएंगे? loop 2. By using Kirchhoff's law in loop 1 and loop 2, we will get the required result. So that is the basic idea. Kirchhoff's law हम लोग पहले first loop में लगाएंगे, फिर second loop में लगाएंगे, फिर we will get the required condition for Wheatstone bridge. When this upon this equals this upon this, then current through the galvanometer is 0. And the Wheatstone bridge is said to be balanced Wheatstone bridge. ये Wheatstone bridge है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे उस कंडीशन में? Balanced Wheatstone bridge. This Wheatstone bridge is said to be balanced. यहां पे मैंने वही लिखा है balanced Wheatstone bridge. If this upon this is equal to this upon this, R1 upon R2 is equal to R3 upon R4, then current through the galvanometer is 0. And the Wheatstone bridge is said to be balanced Wheatstone bridge. So let us start with the Kirchhoff's voltage law in first loop. तो Kirchhoff's voltage law में क्या क्या steps था? First step was marking the positive and negative terminal for battery. बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हम लोग मार्क करेंगे. बड़ा डंडा है उसको हम लोग क्या मार्क करेंगे? पॉजिटिव. छोटा डंडा है उसको क्या मार्क करेंगे? नेगेटिव. तो प्लस माइनस मैंने फर्स्ट स्टेप में बैटरी का मार्क किया. फर्स्ट स्टेप ऑफ किरचॉफ्स लॉ, मार्क द पॉजिटिव टर्मिनल और द हायर पोटेंशियल टर्मिनल एज पॉजिटिव and lower terminal potential as negative. So this is my step 1. Second step, mark the currents.
तो अगर बैटरी ने करंट कितना भेजा आई, तो बैटरी करंट आई भेज रहा है, यहां तक कितना आया करंट आई करंट यहां पे आया। फिर ये R1 वाला जो रेजिस्टर है, R1 वाला रेजिस्टर, उससे मैंने अज्यूम किया I1 करंट जा रहा है। R1 रेजिस्टर ब्रांच में से कितना करंट जा रहा है I1, तो I1 इज द करंट थ्रू रेजिस्टर R1। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग ने करंट I मार्क किया बैटरी से, उसमें से I1 किधर से गया R1 रेजिस्टर से। अब I1 करंट R1 से गया तो R3 से कितना गया, हाउ मच गोज थ्रू R3। सी दिस लॉजिक कैसा है, यहां पे हम लोग का ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे कितना करंट आ रहा है I, उसमें से उधर कितना गया R1 लूप में कितना गया I1, तो बचा कुचा करंट कितना होगा I माइनस I1। If you do not understand this, we are applying Kirchhoff's current law at this point. What is the incoming current at this point? I. Let us say I am writing here. Incoming current कितना है I. Outgoing current through that point कितना है I1 प्लस ये ब्रांच से कितना जाएगा, तो वो मुझे पता लगाना है, इसलिए मैंने वहां पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क I माइनस I1। इसीलिए मैंने क्वेश्चन मार्क को क्या लिख दिया I माइनस I1। इस ब्रांच में से कितना करंट जाएगा I माइनस I1, तो इसीलिए आई मार्क I माइनस I1। अब ये I माइनस I1 कहां जा रहा है राइट डायरेक्शन, तो I माइनस I1 राइट डायरेक्शन में जा रहा है, बट करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो इसीलिए ये पोटेंशियल कैसा होना चाहिए हाई, ये पोटेंशियल कैसा होना चाहिए लो। तो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसलिए मैंने यहां पे कौन सा साइन मार्क किया है प्लस, यहां पे कौन सा साइन मार्क किया है माइनस, तो प्लस माइनस ऐसे हम लोग मार्क करेंगे। तो प्लस माइनस पहला रेजिस्टर R3 में मैंने मार्क किया। नाउ कमिंग टू R1, R1 में करंट अगेन किस डायरेक्शन में राइट डायरेक्शन में, तो राइट डायरेक्शन में करंट है, तो ये कौन सा टर्मिनल होना चाहिए हायर, और ये कौन सा होना चाहिए लोअर, बिकॉज करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर, फ्रॉम हायर टू लोअर, तो दिस इज हायर मींस प्लस एंड दिस लोअर मींस माइनस। कमिंग टू फर्दर डिवीजन ऑफ करंट, मान लिया मैंने किए I माइनस I1 करंट कहां आया यहां तक, रेजिस्टर R3 में से I माइनस I1 करंट इधर तक आया I माइनस I1। अब ये I माइनस I1 में से कितना पार्ट गैल्वेनोमीटर से जाएगा IG, कितना पार्ट गैल्वेनोमीटर में से जाएगा IG, तो IG अगर गैल्वेनोमीटर से मैंने माना, देन इस ब्रांच से R4 वाले ब्रांच से कितना करंट जाएगा। तो अगेन वील डू द सेम कैलकुलेशन, किरचॉफ्स लॉ, करंट लॉ। तो व्हाट विल गेट इफ यू सी केयरफुली, अभी मुझे किस ब्रांच से करंट निकालना है, आई हैव टू फाइंड करंट थ्रू R4, आई हैव टू फाइंड करंट थ्रू R4। तो कैसे निकलेगा, लेट अस से आई डू नॉट नो, सो आई पुट अ क्वेश्चन मार्क, यहां पे मैंने क्या पुट किया क्वेश्चन मार्क। तो कितना करंट आ रहा है इस पॉइंट पे, व्हाट इज द इनकमिंग करंट एट दिस पॉइंट I माइनस I1, इनकमिंग करंट कितना है I माइनस I1, आउटगोइंग करंट कितना है उस पॉइंट से IG, प्लस R4 ब्रांच में से कितना करंट जा रहा है R4 में से क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना होगा I माइनस I1 माइनस IG, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना होगा I माइनस I1 माइनस IG, इसीलिए मैंने यहां पे क्या लिखा है I माइनस I1 माइनस IG, कितना करंट जाएगा R4 में से। अब करंट का डायरेक्शन अगेन किस डायरेक्शन में राइट डायरेक्शन, तो राइट डायरेक्शन में तो करंट फ्लोज फ्रॉम वेयर टू वेयर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो इसलिए यहां पे क्या साइन मार्क किया है प्लस, यहां पे क्या साइन मार्क किया है माइनस। तो दिस इज हाउ वी हैव मार्क प्लस एंड माइनस इन R4 रेजिस्टर। नाउ कमिंग टू दिस रेजिस्टर R2, R2 में से कितना करंट जाएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट पे एट दिस पॉइंट इफ आई अप्लाई किरचॉफ्स करंट लॉ, कितना करंट आ रहा है यहां पे I1, और यहां पे कितना करंट जा रहा है IG, तो I1 और IG दोनों ऐड होगा, I1 एंड IG विल एड अप, तो I1 करंट आया IG करंट आया, तो यहां पे I1 प्लस IG विल फ्लो दिस थ्रू दिस रेजिस्टर R2, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगेन इट इज इन राइट डायरेक्शन, तो इसलिए यहां पे कौन सा साइन होना चाहिए प्लस, यहां पे कौन सा साइन होना चाहिए माइनस। तो दिस इज हाउ वी मार्क प्लस एंड माइनस। अब अगर ये प्लस माइनस साइन मार्क करना समझ गए, देन वी विल नाउ अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू दिस
लूप वन। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पहले मैंने कहां लगाया, लूप वन में। तो लूप वन ये वाला है, दिस इज लूप वन। अब लूप वन को हम लोग कैसे मार्क करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लूप वन को कैसे मार्क करेंगे, क्लॉकवाइज। तो आई हैव मार्क्ड लूप वन इन क्लॉकवाइज सेंस। सिमिलरली लूप टू को मैंने कैसे मार्क किया, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मार्क करना ज्यादा आसान है, तो वी हैव मार्क्ड बोथ लूप्स इन क्लॉकवाइज। हमने पिछले एग्जांपल में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाया था, वहां पे एंटी क्लॉकवाइज मार्क किया था, बिकॉज इन दैट केस करंट वाज फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज। इधर हम लोग ने क्लॉकवाइज मार्क कर दिया बिकॉज करंट जनरली लुक्स टू बी क्लॉकवाइज। देखो यहां पे इस ब्रांच से इस ब्रांच में करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज, जबकि IG इज नॉट क्लॉकवाइज, IG विल मेक इट एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसा हर बार हमें सोचना नहीं है, हम लोग एक क्लॉकवाइज कन्वेंशन मान लेंगे कि वी विल मार्क द लूप इन विच डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज अगर मार्क कर लिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू एनी ऑफ द सर्किट एलिमेंट, वी विल मार्क द लूप इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज ये भी मार्क कर दिया, क्लॉकवाइज ये भी मार्क कर दिया। वंस वी मार्क द क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, देन लेट अस बिगिन अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ। तो फर्स्ट एलिमेंट मैंने जो लूप वन में लिया, इस लूप में फर्स्ट एलिमेंट लिया, तो फर्स्ट एलिमेंट मैंने लिया R1। तो R1 के बारे में सोचेंगे अगर, तो R1 फाइनल साइन कौन सा है यहां पे, माइनस। मैं क्लॉकवाइज जा रहा है ना, तो फाइनल साइन कौन सा है, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, तो फाइनल साइन कौन सा आएगा, माइनस। तो इसीलिए -I1 R1, -I1 R1। दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा रहे हैं हम लोग, तो पोटेंशियल ड्रॉप, इफ यू रिमेंबर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ वाज सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस ऑल सर्किट एलिमेंट्स इन अ क्लोज्ड लूप। ये क्लोज्ड लूप है, देखो दिस इज अ क्लोज्ड लूप। सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस ऑल सर्किट एलिमेंट्स इन अ क्लोज्ड लूप इज 0। तो इसीलिए मैंने क्या किया, -I1 R1, -I1 R1 फर्स्ट हम लोग का पोटेंशियल ड्रॉप। माइनस साइन क्यों आया, बिकॉज फाइनल साइन हियर इज माइनस। फिर उसके बाद हम लोग गैल्वेनोमीटर में से देखेंगे, तो गैल्वेनोमीटर में यहाँ क्लॉकवाइज में जा रहा है, यहां से गया और फिर अब यहां आ गया। तो गैल्वेनोमीटर में पहले मुझे कौन सा साइन दिखाई दे रहा है, माइनस, और यहाँ पे फाइनल साइन क्या है, प्लस। तो इसलिए फाइनल साइन को मैंने क्या किया, गोल किया। सो अकॉर्डिंगली किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में यहाँ पे क्या आएगा, +IG। फाइनल साइन क्या है, प्लस, तो +IG इंटू कैपिटल G। फिर उसके बाद हम लोग R3 रजिस्टर पे, R3 रजिस्टर पे फाइनल साइन क्या है, मैं क्लॉकवाइज ऐसे घूम के आ रहा है, तो फाइनल साइन क्या है, प्लस। तो इसलिए R3 रजिस्टर में भी क्या आएगा, प्लस। R3 में से करंट कितना है, I-I1, प्लस I-I1 इंटू R3 इक्वल्स 0। तो ये 0 क्यों इक्वेट कर दिया हम लोग ने, बिकॉज वी हैव ओनली 1, 2 and 3 एलिमेंट्स इन दिस लूप। इन दिस लूप 1 वी हैव ओनली 1, 2 and 3 एलिमेंट्स। फिर इधर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसीलिए व्हाट वी हैव डन इज कंप्लीटली ट्रैवर्स्ड लूप 1। स्टार्टिंग फ्रॉम R1 वी आर एंडिंग अगेन एट R1। R1 से स्टार्ट किया और वापस हम लोग घूम फिर के कहां पे आ गए, R1 पे। तो इसीलिए दिस लूप इज नाउ कंप्लीट। तो इसीलिए किरचॉफ्स लॉ को हम लोग इक्वल टू किससे करेंगे, 0। फिर हम लोग लूप 2 के बारे में चालू करते हैं, अगेन सेम स्टेप्स। तो लूप 2 में हम लोग क्या करेंगे, लेट अस स्टार्ट विद दिस रेजिस्टर R2। तो R2 से मैंने चालू किया, तुम R2 के बदले R4 से भी चालू कर सकते हो, गैल्वेनोमीटर से भी चालू कर सकते हो, एनीवेयर यू कैन स्टार्ट। तो उसके बाद R2 से अगर चालू करेंगे तो आई एम ट्रैवलिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज में मेरा फाइनल साइन R2 में क्या दिखेगा, माइनस। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे, माइनस करंट थ्रू R2 कितना है, I1 प्लस IG। I1 प्लस IG इज द करंट थ्रू R2। तो I1 प्लस IG इंटू R2 विद अ माइनस साइन। फाइनल साइन क्या है, माइनस। फिर उसके बाद यहां से हम लोग अगला सर्किट एलिमेंट क्या, नेक्स्ट सर्किट एलिमेंट इज R4। तो R4 पे कौन सा साइन है, इधर गोल घूम के हम लोग आएंगे, तो दिस इज पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन है, इसलिए यहां पे करंट कितना है R4 में से, I-I1 माइनस IG। तो I-I1 माइनस IG इज द करंट, I-I1 इन ब्रैकेट्स माइनस IG इज द करंट थ्रू R4। तो I-I1 माइनस IG, इसको हम लोग ने स्क्वायर ब्रैकेट में रखा, इंटू रेजिस्टर कितना है, R4। और कौन सा साइन आएगा, फाइनल साइन कौन सा है, ऐसे गोल घूमेंगे तो फाइनल साइन कौन सा आएगा, प्लस। देन आफ्टर दैट कमिंग टू द नेक्स्ट एलिमेंट विच इज गैल्वेनोमीटर। तो यहां से मैं ऐसे आया, फाइनल साइन। अब ये लूप 2 के लिए फाइनल साइन क्या आएगा, माइनस। तो माइनस साइन फाइनल आया, तो माइनस IG इंटू G, बिकॉज द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0। माइनस IG इंटू G इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि हम लोग R2 से चालू किया था, वापस घूम फिर के हम लोग R2 पे आ गए, तो इसीलिए हम लोग 0 के इक्वेट कर देंगे।
फिर पुट IG इज इक्वल टू 0। अब ये मैंने क्यों किया? बिकॉज व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? वी आर ट्राइंग टू सी दैट इफ दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, देन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0। और मैंने बोला था ऑल्टरनेटिवली वाइस वर्सा, अगर ये ट्रू है तो वो भी ट्रू रहेगा। तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी विल टेक दिस वैल्यू ऑफ IG एंड प्रूव दिस रिजल्ट। चाहे ये लेके ये प्रूव करो या ये लेके वो प्रूव करो, इट इज वन एंड द सेम इटसेल्फ। तो IG इज इक्वल टू 0 मैंने दोनों इक्वेशन में डाला। किस इक्वेशन में? इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में मैंने IG को कितना डाला? 0। तो IG हमारे पास यहां है, तो IG वाला जो ये इक्वेशन है ये क्या हो जाएगा? 0। IG को मैंने क्या डाला है? 0। तो दिस टर्म विल वैनिश। तो हम लोग के पास कौन सा टर्म बचेगा? ये टर्म और ये टर्म। तो व्हाट विल बी हैविंग फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन? वी कैन रीराइट द फर्स्ट इक्वेशन आफ्टर पुटिंग IG as 0 इन दिस फॉर्म। I1 R1 ये मैं उस साइड में लेके गया। I1 R1 टर्म में कहां लेके गया? RHS में। I1 R1 इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R3। सी दिस, ये माइनस I1 R1 को हम लोग किधर लेके गए? राइट साइड में। तो I1 R1 इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R3। और जो इक्वेशन बना है उसको मैंने क्या मार्क किया? 3। तो दिस रिमेंबर दिस इक्वेशन विल यूज लेटर, तो इसीलिए इसको मैंने क्या मार्क कर दिया? 3। अब ये इक्वेशन मार्क करने के बाद आई एम गोइंग टू लूप 2। तो लूप 2 में क्या है हम लोग के पास? ये इक्वेशन। अगेन इस इक्वेशन में हम लोग IG को क्या डालेंगे? 0। तो IG मतलब ये टर्म 0 और ये टर्म 0 और ये टर्म 0। सो 3 बार IG हमारे पास लूप 2 में। लूप 2 में किरचॉफ लॉ लगाया तो वी हैड IG हियर, हियर एंड हियर। तो तीनों जगह पे हम लोग IG क्या डाल देंगे? 0, क्योंकि IG का वैल्यू क्या पुट करना है हम लोग को? 0। तो IG 0 डालने के बाद क्या इक्वेशन बनेगा? लूप 2 का। लूप 2 का नया इक्वेशन क्या हो जाएगा? इट विल बी लाइक दिस। क्या आएगा? माइनस I1 R2। यहां पे देखते हैं, माइनस I1 R2, माइनस I1 R2 प्लस I माइनस I1 प्लस I माइनस I1 इंटू R4। अब ये IG क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो तो 0 हो गया। तो इसलिए हम लोग ने लूप 2 का जो सेकंड इक्वेशन है उसको इस फॉर्म में रीअरेंज किया बाय पुटिंग IG as 0। माइनस I1 R2 प्लस I माइनस I1 इंटू R4 इक्वल्स 0। तो ये इक्वेशन आ गया। फिर उसके बाद अगेन ये वाला जो टर्म है इसको हम लोग कहां लेके जाएंगे? RHS में। इस टर्म को कहां लेके जाएंगे? RHS में। एंड वी विल रीराइट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म। देखो ये उधर जाएगा तो क्या आएगा? प्लस I1 R2। तो प्लस I1 R2 इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R4। दिस इज अवर इक्वेशन 4। इसको मैंने 3 मार्क किया था, इसको मैंने क्या मार्क कर दिया? 4। देन वी डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4। तो 3 डिवाइड बाय 4, तो 3 डिवाइड बाय 4 हम लोग को क्या मिलेगा? जब हम लोग दोनों इक्वेशन लिखेंगे तो ये I1 कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि व्हेन वी डिवाइड दीस टू इक्वेशंस, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो कॉमन टर्म कैंसिल्स आउट। व्हाट वी गेट इज R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू RHS में क्या आएगा? I माइनस I1 कैंसिल हो जाएगा। व्हेन वी डिवाइड दीस टू इक्वेशंस I माइनस I1 टर्म्स गेट कैंसिल्ड। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, ये हम लोग को मिल जाएगा। तो देयरफॉर इफ आई पुट IG 0 then I get this condition R1 upon R2 is equal to R3 upon R4. Alternatively, if R1 upon R2 is R3 upon R4, then IG is equal to 0. तो दोनों कंडीशन हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। We can use if this is true, then IG becomes 0, or if this IG is 0, then this R1 upon R2 is R3 upon R4 equation holds true. अब ये इक्वेशन हम लोग यूज कहां पे करेंगे? मान लो ये एक रेजिस्टर R4 हम लोग को नहीं पता है, मान लो हम लोग को इसका वैल्यू नहीं पता है। लेट अस से इट इज X। लेट अस से R1 का वैल्यू कितना है? 1, R2 का वैल्यू कितना है? 2, R3 का वैल्यू कितना है? 3। तो R4 का वैल्यू कितना है? दैट इज द क्वेश्चन। तो क्या करेंगे हम लोग? 1 अपॉन 2 R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 गिव्स मी R1 का वैल्यू कितना है? 1 अपॉन R2 का वैल्यू कितना है? 2, R3 का वैल्यू कितना है? 3 अपॉन R4 का वैल्यू जो कि नहीं पता है उसको हम लोग क्या रख देंगे? X। तो देयरफॉर X का वैल्यू कितना आएगा? 600। X का वैल्यू कितना है? 600। दैट इज हाउ वी विल यूज किरचॉफ्स लॉ, सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल।
व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल यूज करके हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। एक्स विच इज द अननोन रेजिस्टेंस, उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। अब if you have difficulty in marking the currents, so let me mark the currents again in this circuit. तो एक बार मैंने इस सर्किट नीचे इसलिए बनाया ताकि we can have some practice of marking currents. तो if you see carefully, ये रेजिस्टर क्या था यहाँ पे, this resistor here was R4, this resistor जो मैंने X नाम दिया, this is R4, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया R4, so this is R4. Okay, so let us again try to mark the currents. तो मान लो ये बैटरी से करंट कितना आया, आई बैटरी से करंट आया, आई करंट कहां गया, ये यहां से घूम के यहां तक आया। फिर उसके बाद ये R1 ब्रांच में हम लोग ने कितना करंट माना, I1, तो यहां से कितना जाएगा I1, तो I1 करंट फ्लोज थ्रू R1 ब्रांच। फिर उसके बाद इस पॉइंट पे अगर मैं किरचॉफ्स करंट लगाऊं, इस पॉइंट पे अगर मैं किरचॉफ्स करंट लगाऊं, तो थिंक अबाउट व्हाट शुड बी द करंट हियर, यहां पे कितना करंट आना चाहिए, यहां पे R3 ब्रांच से कितना करंट आना चाहिए, R3 ब्रांच से कितना करंट आना चाहिए। इफ यू थिंक केयरफुली, व्हाट इज द इनकमिंग करंट एट दिस पॉइंट, I, व्हाट इज द आउटगोइंग करंट थ्रू दिस पॉइंट, I1, प्लस इधर कितना जाएगा, क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना आएगा, I माइनस I1, तो इसीलिए क्वेश्चन मार्क का वैल्यू मैंने इधर क्या रख दिया, I माइनस I1, सो दिस इज अवर I माइनस I1। फिर उसके बाद ये करंट इधर से इधर तक गया, I माइनस I1, R3 में से जाएगा तो उसका वैल्यू कितना रहेगा, I माइनस I1। अब ये I माइनस I1 करंट आया, तो इसमें से ऊपर गैल्वेनोमीटर के ब्रांच में से कितना करंट माना मैंने, IG गैल्वेनोमीटर से लेट अस से इट इज पासिंग थ्रू दैट ब्रांच, IG करंट, कितना ब्रांच से करंट जा रहा है, IG, तो IG अगर इधर से गया तो इस पॉइंट पे फिर से किरचॉफ्स का लगाया, तो इस पॉइंट पे कितना आएगा, R4 में से कितना करंट जाएगा, तो I माइनस I1 इज द इनकमिंग करंट, IG इज द आउटगोइंग करंट, सो व्हाट विल दिस कम आउट टू बी, इनकमिंग इज आउटगोइंग, इनकमिंग कितना है, I माइनस I1, उसमें से इधर कितना चला गया, IG, तो बचा हुआ कितना है, I माइनस I1 माइनस IG, इस ब्रांच से कितना करंट जाएगा, I माइनस I1 ब्रैकेट में माइनस IG, सो दिस इज द करंट थ्रू द R4 रेजिस्टर। फिर यहां से करंट जो I1 आ रहा था वो I1 यहां से भी जाएगा, सो I1 करंट विल फ्लो थ्रू दिस R1 फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड। अब ये IG करंट जो गैल्वेनोमीटर में जा रहा है वो फिर से कहां जाएगा, ऊपर IG, तो I1 करंट आया, IG करंट आया इस पॉइंट पे, तो इस ब्रांच में से कितना जाएगा, देखो इनकमिंग करंट कितना है I1 और एक इनकमिंग कितना है IG, तो फिर आउटगोइंग कितना होगा, आउटगोइंग करंट I1 प्लस IG, सो दैट इज हाउ विल मार्क द करंट्स थ्रू दिस सर्किट। तो ये हम लोग ने करंट्स मार्क कर लिया, सब एलिमेंट्स में से करंट मार्क कर लिया। गैल्वेनोमीटर विल स्टडी लेटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, ये सब हम लोग को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ना है। So at that time we'll study what this galvanometer does. For now just understand galvanometer shows deflection in current when there is current through the galvanometer. Galvanometer एमीटर जैसा ही है, सिर्फ वो है कि वो कभी कभी अगर करंट ऊपर जा रहा है मान लो, तो अगर उसने राइट साइड में डिफ्लेक्शन दिखाया, तो करंट अगर नीचे आ रहा होता तो लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन देगा। दैट इज द ओनली थिंग विच वी नीड टू रिमेंबर फॉर नाउ। गैल्वेनोमीटर से हम लोग को ऐसे IG करंट मार्क करना है। अब उसके बाद हाउ टू मार्क प्लस माइनस, तो ये बड़ा डंडा है, इसको हम लोग क्या मार्क करते हैं, बैटरी का प्लस, और छोटे डंडे को क्या मार्क करेंगे, माइनस। फिर से यहां से I1 करंट कहां जा रहा है, राइट, बट करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो यहां करंट राइट में जा रहा है, मतलब ये क्या होगा, हायर, ये क्या होगा, लोअर, तो प्लस माइनस। फिर यहां पे करंट कहां है, अगेन राइट साइड में, तो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर, तो हायर टू लोअर मतलब यहां पे क्या आएगा, प्लस, यहां पे क्या आएगा, माइनस। फिर अगेन इधर भी करंट कैसे मार्क करना है, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर, तो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। फिर उसके बाद अगेन यहाँ पे राइट साइड में करंट है, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर, इसलिए प्लस माइनस। देन वी टेक लूप्स, इसको मैंने बोल दिया लूप 1, इसको मैंने क्या बोल दिया, लूप 1, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मार्क कर दिया। फिर मैंने इसको क्या किया, लूप 2, दिस इज लूप 2, उसको भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मार्क कर दिया। सो लूप 1 लूप 2 मार्क किया। देन आई अप्लाई किरचॉफ्स लॉ इन लूप 1। लेट मी टेल यू मेंटली विदाउट राइटिंग, यहां पे मेंटली में तुम्हें पता है कि किरचॉफ्स लॉ कैसे लिखना है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो फाइनल साइन क्या है, माइनस, माइनस I1 इंटू R1, माइनस I1 इंटू R1 फर्स्ट टर्म। फिर यहां पे गैल्वेनोमीटर में करंट कहां जा रहा है, गैल्वेनोमीटर में करंट ऊपर जा रहा है,
तो करंट ऊपर जा रहा है मतलब करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, तो इसलिए क्या होना चाहिए प्लस, ये क्या होना चाहिए माइनस। तो माइनस I1 R1 फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म क्या है लूप, ये बाद में गैल्वेनोमीटर में से जाएंगे जब हम लोग, तो फाइनल साइन इज प्लस, तो प्लस IG इंटू जी। फिर थर्ड टर्म जब हम लोग क्लॉकवाइज में R3 पे आएंगे तो फाइनल साइन इज प्लस, तो प्लस I माइनस I1 इंटू R3 इज इक्वल टू 0। ये हम लोग का लूप 1 इक्वेशन हो गया, विच इज व्हाट आई हैव रिटन हियर। फिर लूप 2 में कैसे करेंगे हम लोग, तो लूप 2 में लेट अस स्टार्ट विद R2। अगर मैं क्लॉकवाइज घूमा तो फाइनल साइन क्या है माइनस, तो माइनस I1 प्लस IG इंटू R2, वही मैंने यहां पे लिखा है माइनस I1 प्लस IG इंटू R2। फिर अगला आएगा रेजिस्टर R4, फाइनल साइन क्या, जब मैं ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है तो फाइनल साइन प्लस R4, तो प्लस I माइनस I1 माइनस IG इंटू R4। फिर थर्ड एलिमेंट कौन सा है, गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर में फाइनल साइन लूप 2 के लिए फाइनल साइन, जब मैं ऐसे घूम रहा है तो यहां से यहां करंट कहां जा रहा है ऊपर, तो जब मैं ऐसा जर्नी है मेरा यहां से यहां, तो फाइनल साइन क्या होगा, इधर मैंने चालू किया और इधर क्या गैल्वेनोमीटर, तो फाइनल साइन अब क्या आएगा लूप 2 के लिए, यहां पे माइनस, ये माइनस ये वाला, तो इसलिए व्हाट इज द थर्ड टर्म, माइनस IG इंटू जी इक्वल्स 0, क्योंकि हम लोग वापिस R2 पे आ जाएंगे। तो दिस इज हाउ विल यूज किरचॉफ्स लॉ, and after that we will rearrange them equations mathematically and we will divide the equations and we'll get our result. What is the result? If R1 upon R2 is equal to R3 upon R4, then current through galvanometer or current through the bridge branch बोलेंगे इसको, this is like a bridge branch में से करंट कितना होगा 0। अब और एक चीज जो ध्यान रखना है, अगर this upon this is equal to this upon this है तो फिर ये गैल्वेनोमीटर में करंट 0। लेकिन और एक चीज, अगर इसको रीअरेंज करें, इसको R1 अपॉन R2 इज R3 अपॉन R4 न लिख के, लेट अस से आई टेक दिस R3 नीचे एंड R2 को मैं ऊपर लेके गया, लेट अस से आई टेक R3 नीचे, R2 को ऊपर लेके गया, आई इंटरचेंज दिस टू, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2, यहां पे क्या आ जाएगा 3, तो इज इट स्टिल मैथमेटिकली करेक्ट, मैथमेटिकली करेक्ट है क्या, दिस अपॉन दिस इज दिस अपॉन दिस, देन कैन आई इंटरचेंज दिस टू टर्म्स, यस। जैसे सोचो अगर एक एग्जांपल लिया 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6, ये बराबर है कि, तो अगर मैं 2 और 3 को इंटरचेंज करूं तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 6 विच इज ट्रू, 1 अपॉन 3 इज 2 अपॉन 6, ये तो बराबर होता ही है। तो इन टर्म्स को हम लोग इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, आई कैन मूव दिस टर्म हियर एंड दैट टर्म देयर, तो इसीलिए R1 अपॉन R3 इज R2 अपॉन R4 भी वैलिड होगा। दैट मीन्स अगर this upon this is equal to this upon this, then also I can say galvanometer current is 0. See this, कैसे होगा ये, if this upon this is equal to this upon this, then galvanometer current is 0, bridge branch current is 0, or if this upon this is equal to this upon this, then galvanometer current is still 0, the bridge branch current is still 0. I can take either this upon this is equal to this upon this, or I can take this upon this is equal to this upon this. But I cannot take something like this. This upon this is equal to this upon this, ऐसा नहीं चलेगा, वो मैथमेटिकली गलत हो जाएगा। R1 upon R4 is equal to R2 upon R3, ऐसा कुछ भी हमारे मन से नहीं करेंगे, because this is mathematically correct, ये मैथमेटिकली करेक्ट है ये कन्वर्जन, इसलिए मैंने बोला this upon this is equal to this upon this is okay, and this upon this is equal to this upon this is also okay, but this upon this is equal to this upon this is wrong। क्यों, देखो सोचो, हम लोग याद करने का तरीका, अगर मैंने क्या किया this upon this तो ऐसे होगा कि, and this upon this मतलब ऐसे होगा कि, तो ऐसे भी wrong साइन बन रहा है, that means it is wrong, this upon this is this upon this which is wrong, ऐसा wheatstone bridge condition नहीं है। What is the condition? This upon this is equal to this upon this, या तो फिर this upon this is equal to this upon this, any two condition will be okay। तो R1 upon R2 is R3 upon R4 और R1 upon R3 is R2 upon R4। Again do not remember this equation कि R1 upon R2 is R3 upon R4। अगर मैंने इनका नाम भी इंटरचेंज कर दिया, मान लो मैंने इसको R4 बोल देता, इसको R2 बोल देता, तो फिर वो ऐसा नहीं है कि R1 upon R2 is R3 upon R4 वैलिड होना चाहिए। What we have to say this upon this should be this upon this, ऐसा होना चाहिए। It is not like कि R1 upon R2 is R3 upon R4 होना चाहिए। जो R1 नाम दिया है that is not important, the name is not important कि R1 upon R2 is R3 upon R4, we have to say it, visualize it। visualize में क्या होगा,
this upon this is this upon this. This is the simple visualization. Then bridge current is 0. Or this upon this is this upon this. Then bridge current is 0. Do not go by the formula. Go by the steps. What are the steps? This upon this is this upon this. Then galvanometer current is 0. Or this upon this is this upon this. Then galvanometer current is 0. Do not try to mug up R1 upon R2 is R3 upon R4. Then galvanometer current is 0. वैसे मग अप करके काम नहीं होगा. इस फिगर के लिए ये इक्वेशन वैलिड है. बट अगर तुमने R1, R2, R3 और R4 मैनिपुलेट कर दिया such that the ratio comes out to be same and still galvanometer current can be non-zero. अगर तुमने वैसा मैनिपुलेट करके वैल्यूज रखा तो what is the condition? This upon this is this upon this, then galvanometer current is 0. Or this upon this is this upon this, then galvanometer current is 0. तो ऐसा नहीं है कि मुझे this upon this बोलने में मजा आ रहा है, but it is the visualization that is important. This upon this is this upon this. That is the most important thing for wheatstone bridge concept, rather than this formula. R1 upon R2 is R3 upon R4. If this is true, then we can say galvanometer current is 0. This does not always hold true. ऐसा नहीं होगा. But ये अगर तुमने समझा है कि this upon this is this upon this, then galvanometer current has to be 0. And the wheatstone bridge is said to be balanced. So this is about the wheatstone bridge principle. Wheatstone bridge can also be shown in another way. Let us say another diagram for wheatstone bridge. तो wheatstone bridge का हम लोग अगला डायग्राम बना के देखते हैं. तो अगला डायग्राम कैसा है wheatstone bridge का? तो थोड़ा सा हम लोग ने अलग डायग्राम बनाया. सेम उसी का डायग्राम हम लोग बना रहे हैं, but we can show it like this. थोड़ा बड़ा बना के देखते हैं हम लोग for better understanding. So this is another way of representing the wheatstone bridge. ये भी वही चीज है, only thing is we have slightly modified the representation. Battery. So this is also a wheatstone bridge. Is it balanced? Not necessary. मतलब हो भी सकता नहीं भी हो सकता है. मान लो इधर मैंने लिख दिया 1 2, इधर लिख दिया 3 6. Now if I ask you the question, is it balanced? Yes. This upon this is this upon this. Then current through the galvanometer is 0. Ig is equal to 0. तो हम लोग बोल सकते हैं wheatstone bridge is now balanced. Is this upon this is this upon this? Yes. 1 upon 3 is 2 upon 6. ये भी true है. तो this is again balanced wheatstone bridge. So Ig will be 0. लेकिन अगर मैं इधर 5 ohms वैल्यू डाल दूं तो that will not be true. Because 1 upon 2 is not equal to 3 upon 5. Or 1 upon 3 is not equal to 2 upon 5. तो वैलिड नहीं होगा.